يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اسی کے حکم سے ہر چیز شروع ہوتی ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ وہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، سب سے آخری اور سب سے محبوب اور سب سے پیارے بندے اور رسول بنایا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے قرآن المجید کے ہر حکم کو عملی جامہ دے کر اپنی امت تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں پر ٹھہری ہوئی عمارت ہے۔ اس میں سے کوئی ایک پلر یا کوئی ایک بھی جز اگر اس میں سے لڑکھڑائے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ کمزور پڑتی ہے، وہ گر جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام نام ہے 5 پلرز کا، 5 ستونوں کا۔ الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، سب سے بیچ کا پلر، یعنی ایک ٹینٹ آپ اگر ڈال لو، 4 پلر اور بیچ میں ایک سینٹر پول رکھا ہے، وہ سینٹر پول کی تشبیہ الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، یہ سینٹر پول ہے۔ اگر اس کو نکال دیں گے 4 پول اگر باقی بھی رہے تو کچھ بھی فائدے کی عمارت نہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا الصلاۃ، اس کے بعد دوسرا جو پلر ہے اسلام کے بعد، انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کر لینے کے بعد سب سے بڑی پابندی اس کے پر جو آتی ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ اس کے بعد روزے کی پابندی ہے۔ اس کے بعد اگر انسان کے پاس مال ہو، پیسہ اگر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اور 5ویں جو چیز ہے، 5واں پلر جو اسلام کا ہے وہ حج ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے، صحت ہے، جانے کے تمام وسائل ہیں تو انسان کو یہ 5واں فریضہ، حج کا فریضہ بھی انجام دینے کی ضرورت ہے۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہ 4 پلرز میں سے ایک پلر یعنی نماز کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس تعلق سے، اس ٹاپک پر، اس عنوان پر بارہا آپ کے سامنے باتیں آتی ہیں، میرے سامنے باتیں آتی ہیں۔ بارہا ہمیں اللہ کی کتاب ہمیں بلاتی ہے نماز کی طرف، نبی کی حدیث ہمیں نماز کی طرف بلاتی ہے۔ نبی کا عمل پوری زندگی میں آخری دن تک نبی کا عمل یہی رہا کہ وہ نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے، نماز کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا اہم رکن جو ہے نماز ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کو اسٹیبلش کیا۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اندر نماز پڑھو کر کے حکم نہیں، نماز کو قائم کرو۔ یعنی اگر انسان کوئی چیز بناتا ہے، بنیاد کوئی عمارت بناتا ہے، سب سے پہلے فاؤنڈیشن ڈالتا ہے، اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، وہاں سے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا من اقامہا اقام الدین، نماز کو جس نے اسٹیبلش کیا، جس نے نماز کو قائم کیا اپنی زندگی میں، یہ نہیں کہ 1 مرتبہ پڑھا 2 مرتبہ چھوڑا، 2 مرتبہ پڑھا 1 مرتبہ چھوڑا، ایسا نہیں، ایک دن پوری پابندی سے پڑھا دوسرے دن چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں۔ مکمل گارنٹی، مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ آپ فرمایا آپ نے من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو قائم کیا۔ آج ہم لوگوں میں سے ایک معمول بن چکا ہے ہمارا، ہر آدمی دین کی بات کرتا ہے، دین کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے، دین کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے۔ نبی کی سنت، نبی کا قول یہ ہے کہ دین کو اگر اسٹیبلش کرنا ہے تو وہ نماز کے ذریعے ہوگا۔ آپ کو پولیٹیکل پاور ملنے سے دین قائم نہیں ہوگا،
इकोनॉमिक पावर मिलने से दीन कायम नहीं होगा, एजुकेशन में, तालीम में आप मुझे चले जाओ, दीन कायम नहीं होगा। आपने फरमाया दीन अगर कायम करना है तो नमाज की पाबंदी करो। मन अकामहा अकामद्दीन व मन तरकहा फकद कफर। पहले जुमले से ज्यादा सख्त जुमला ये हदीस का आखिरी टुकड़ा है। आपने फरमाया जिसने नमाज को छोड़ा, नमाज की जिसने पाबंदी नहीं की, उसने कुफ्र किया। कोई भी अमल इस्लाम का ऐसा नहीं है, इबादत का कोई अमल ऐसा नहीं है जिसको छोड़ने से डायरेक्ट काफिर बनता है इंसान। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज को कायम नहीं करने वाला, छोड़ने वाला, छोड़ कर पढ़ने वाला, इसमें नेगलेक्ट करने वाला इंसान वो कुफ्र के दरवाजे तक चले जाता है। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली इबादत नहीं है। हमारा जो सबूत है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की बात को मानने वाले हैं, हम नबी के तरीके पर चलने वाले हैं, हम अहलुल हदीस हैं, अगर हम ये दावा करते हैं तो अमली जामा हमें उसको नमाज की शक्ल में लेना पड़ेगा। आज हम में से कई सारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अहलुल हदीस हैं, हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में नमाज ही नहीं। अगर तुम एक बेनमाजी कैसे एक अहले हदीस बन सकता है, एक बेनमाजी कैसे कुरान को मानने वाला बन सकता है? मेरे भाइयों, इतनी अहम चीज है ये। अल्लाह की किताब के अंदर सलात का लफ्ज 80 पर 3 मरतबा आया है, एक नहीं, दो नहीं, 83 टाइम्स अल्लाह ताला इस लफ्ज को जिक्र करता है। अल्लाह ताला फरमाता है उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस सलात। ऐ नबी, मैंने जो किताब तुम्हें नाजिल की है, तुम पर जिस किताब को वही के जरिए नाजिल किया है, उसको पढ़िए आप लोगों पर। मिनल किताबी व अक़िमिस सलात, नबी को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी नमाज को कायम करो और अपने मानने वाले, अपने चाहने वाले लोगों को से भी ये कहो कि वो नमाज को कायम करे। आज हर आदमी, हमने का हर आदमी दावा करता है कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के ऊपर अगर आंच आए तो हमारा खून खौलता है। लेकिन वही नबी जिंदगी में जिसने एक नमाज भी न छोड़ी हो, ऐसे नबी की पैरवी हम नहीं करते। कहां के दाई हैं हम, कहां के हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों का दावा हम कर सकते हैं? फिर अल्लाह ताला फरमाता है अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। लोगों जान लो, नमाज को कायम करने से तुम्हें दो बड़े फायदे होंगे। एक तो नमाज तुम्हें फहश, बदकारी, इंडिसेंट कामों से तुम्हें रोकेगी, इस पर पाबंदी लगाती है नमाज। फहशाई वल मुनकर, जिन चीजों को अल्लाह पसंद नहीं करता, मुनकरात है, अल्लाह ताला नमाज के जरिए मोमिन को सेफ गार्ड करता है, मोमिन की हिफाजत करता है। एक बंदा मोमिन जब नमाजी बन जाता है, नमाज को एस्टैब्लिश करता है, कायम करता है अपनी जिंदगी में, तो उसके अंदर ये दो जराइम नहीं पाए जाते, एक फहशकारी, दूसरा मुनकरात पर चलना। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जो जिक्र है वो सबसे बेहतरीन चीज है, अल्लाह का जिक्र सबसे बेहतरीन चीज है। तो पता ये चला कि नमाज पढ़ने से इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, और नमाज तमाम अज़कार में सबसे बुनियादी जिक्र जो है, बुनियादी याद अल्लाह की जो है, तो नमाज से है। जब एक बंदा मोमिन नमाज में खड़ जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन्नहु युनाजी रब्बहु, गोया कि वो बंदा अल्लाह ताला से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है।
کتنا بڑا اعزاز. یہ سوچ کر نماز اگر انسان پڑھے گا کہ میں جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہوں تو میرا اللہ سے کانورسیشن شروع ہو گیا. تو یہ جب سوچے گا انسان, جو آدھا گھنٹہ انسان کو نماز میں لگتا ہے, 5 وقت کی جو فرض نماز ہے, یہ پڑھنے میں مشکل سے مشکل آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. یہ سوچے گا انسان کہ میری دن کے 24 گھنٹوں میں سے پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اللہ سے بات کرنے میں لگ جائے تو ہماری نمازیں آٹومیٹیکلی اچھی ہو جائیں گی. ہماری نمازوں کے اندر آٹومیٹیکلی خشوع اور خضوع آئے گا. ہمارے اندر وہ طرف آئے گی کہ اللہ کی آواز آ رہی ہے, مؤذن کی ندا ہو رہی ہے, ہم ہر کام چھوڑ کر اللہ کی طرف جائیں. نماز ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں, جب میں یہ باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں میں بہت بڑا عمل کرنے والا, ایسی بات نہیں. اس کا مخاطب میں بھی ہوں. انسان کو چاہیے کہ جب اللہ کے گھر سے, یعنی مسجد اللہ کا گھر, اللہ کے گھر سے اگر آواز آئے جائے کہ آؤ نماز کی طرف, اللہ بڑا ہے, اللہ کی پکار اگر آ جائے, ہر کام کو چھوڑ کر نماز کو جانا. اور جب بندہ مومن ایسا کرے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن فرائض کا اہتمام کرنا شروع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے قریب ہونا شروع کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہو یا ہم اللہ سے قریب ہوں, تو سب سے پہلی چیز فرائض جو ہے اس پر پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اور فرائض میں سب سے اہم فریضہ جو دن ہر روز سال کے 365 دن بھی ہمارے سامنے جو ملتا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے. دیکھو, زکوٰۃ انسان جب نکال دیتا ہے زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے. روزے سال میں 1 مرتبہ ہمیں 1 مہینے کا موقع ملتا ہے. حج سال میں زندگی میں 1 مرتبہ ہمیں حج کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم روز اس پر عمل کریں اور روز ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں. نماز کو رأس العبادات کہا گیا. عبادتوں میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے. کیوں؟ اس کے اندر تلاوت قرآن ہے, اور قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عمل, تو یہ بھی عمل نماز کے اندر شامل ہوتا ہے. جب بندہ مومن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی ربی حمد عبدی, میرا بندہ نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم مجدنی عبدی, میرے بندے نے مجھے میری کبریائی بیان کی ہے. مالک یوم الدین جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے میرے بندے نے مجھے پکارا. جب بندہ مومن ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھے یہ 3 چیزوں سے یاد کیا, اب اگر میرا بندہ کوئی بھی چیز مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے, اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ اللہ کے لیے. اور یہ جو کہنے والا ہے اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ایسا راستہ نہ دکھائیو جو یہود اور نصارا کا راستہ ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرے بھائیوں, یہ تمام چیزیں انسان کو نماز کے ساتھ آٹومیٹیکلی ملنے والی. نمازی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک نور دینے والا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, تم نمازی کو پہچانو گے کل قیامت کے دن
उनके अल्लाह के सामने झुक झुक कर उनके सरों पर जो निशान आते हैं ये चमकेंगे, तुम इससे पहचान सकोगे कि ये आदमी नमाजी है, फला आदमी नमाजी है। ये चीज सिर्फ बंदों के लिए नहीं, इससे पहले वाले पैगंबरों को अल्लाह ताला मुखातब करते हुए फरमाता है वो औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने तुमसे पहले के नबियों को वही की कि वो अच्छे काम करते रहे, वो इकामत सलात, और हमेशा नमाज को कायम करे। अल्लाह ताला मोमिन के औसाफ बयान करते हुए सबसे पहली चीज अल्लाह ताला मोमिन के ताल्लुक से नमाज को रखता है। 8 या 10 औसाफ मोमिन के अल्लाह ताला बयान करता है, उसको शुरू में भी नमाज को फौकियत रखता है और आखिर में भी उसको नमाज को फौकियत रखता है। दलील इसकी सूरतुल मोमिनून अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, तहकीक के मोमिन लोग कामयाब हो गए। ये सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस कुरान, ये सूरत का पहली आयत, क़द अफ़लहल मोमिनून, जान लो कि मोमिन कामयाब हो गए। इन्हें होने वाले नहीं कहता अल्लाह ताला, हो गए, ऑलरेडी हो गए। फिर अल्लाह ताला मोमिन के 8 या 10 औसाफ बयान करता है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। मोमिन की पहली सिफत कि जब भी नमाज को खड़ेगा तमाम चीजों को दिमाग से निकाल कर यकसूई के साथ, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़ेगा। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। दूसरी क्वालिटी, मोमिन कभी गप्पे हाँकने वालों के साथ नहीं बैठता, बेकार की बात करने मोमिन अपना वक्त जाया नहीं करता। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात का मामला आया मोमिन पहले ज़कात निकाल देता है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और मोमिन अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, मगर सिर्फ अपनी बीवियों के साथ, अपने जो ख्वाहिशात हैं अपनी बीवियों के साथ या अपनी लौंडियां यानी वमा मलकत अयमानुहुम, इनके साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरी करता है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, ये दो चीजें को छोड़कर किसी और जगह अगर इंसान अपने ख्वाहिशात को निकालने की कोशिश करता है तो वो हद से ज्यादा करने वाला यानी गुनहगार बन जाता है। फिर अल्लाह ताला 5वीं सिफत बयान करता है, वल्लज़ीना हुम बिअहदिहिम राऊन, अमानतदारी, अमानत की पासदारी करने वाला होता है मोमिन। फिर ये 5 चीजें बयान करके अल्लाह ताला फिर कहता है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम मुहाफ़िज़ून, मोमिन वो है जो अपने तमाम नमाजों की हिफाजत करते। ऐसा नहीं कि 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, दिन में 4 पढ़ लिया, बड़ा एहसान कर दिया समझते हैं इंसान। आज इंसान समझता है कि दिन में 4 नमाज अगर पढ़ लिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह ताला कहता है कि जो 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करता है तो वो मोमिन कहलाता है। और ऐसे लोगों को क्या रिवार्ड मिलेगा, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हैं हकीकत में वारिसदार हैं। किसके? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, जन्नतुल फिरदौस के हकीकत में अगर कोई वारिसदार है तो ये 5 या 6 औसाफ रखने वाले मोमिन। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सबसे पहली चीज अगर कोई पूछे जाएगी इंसान को तो नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज की पाकी यानी नमाज कैसे इंसान को पाक करती है इसको एक एग्जाम्पल से आपने समझाया। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, किसी आदमी के घर के सामने एक नहर बहती हो और वो नहर में वो आदमी 5 वक्त डुबकी लगाता है और उठता है, क्या उसके जिस्म पर कोई गंदगी बाकी रहेगी?
5 वक्त नहर में नहाने, साफ पानी की नहर में नहाने वाले के जिस्म पर क्या कोई गंदगी बाकी रहेगी? आपने सहाबा से सवाल किया तो सहाबा ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा आदमी हमेशा जिस्म से पाक रहेगा। तो आपने फरमाया, फज़ालिका मिस्लु सलावातिल खम्स, ऐसी ही मिसाल है 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों की। यम्हुल्लाहु बिहल खताया, अल्लाह ताला उस आदमी के गुनाहों को, जैसा ये नहर साफ करती है इंसान को, अल्लाह ताला उसके इस नमाजी के गुनाहों को साफ करता चला जाता। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहतरिकून तहतरिकून, तुम लोग आग के अज़ाब में जल रहे हो, तुम लोग आग के अज़ाब में जल रहे हो। आपने फरमाया, फिर आपने फरमाया, फैज़ा सल्लैतुमुस सुबह गसलतहा, जो अगर आदमी कोई उठकर फजर की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके जितने गुनाह है उसको धो लेता है। फिर आपने फरमाया, तहतरिकून तहतरिकून, तुम लोग आग में जल रहे हो, तुम लोग आग के अज़ाब में जल रहे हो। फिर आपने फरमाया, फ़इज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुहरा गसलतहा, अगर आदमी जोहर की नमाज हो गई, उसको मस्जिद में जाके नमाज अदा कर देता है, अल्लाह ताला उसको साफ कर देता है, पाक कर देता है। इसी तरीके से आपने फरमाया, तहतरिकून तहतरिकून, असर के ताल्लुक से, तहतरिकून तहतरिकून, मगरिब के ताल्लुक से, तहतरिकून तहतरिकून, इशा के ताल्लुक से। यानी हर नमाज के बाद जो इंसान छोटी मोटी गलतियां करता है, गुनाह करता है, नमाज उसको साफ कर देती है, पाक कर देती है नमाज उसको। इशा की नमाज के बाद आपने ये नहीं फरमाया कि तुम इसके बाद इसको पाक किया जाएगा, नहीं, सुम्मा तनामून, इशा की नमाज होने के बाद तुम सो जाओगे, और फिर जब तुम कल सुबह को उठोगे, जब तुम्हारा गुनाह का अकाउंट शुरू होगा, फिर तहतरिकून तहतरिकून। पता ये चला कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज, उसके बीच में किए गए गुनाहों का कफ्फारा बनती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये पता चली कि इंसान को इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाना चाहिए। आज हमारे दिन का सबसे गुनाह के ताल्लुक से सबसे ज्यादा गुनाह अगर होने वाला कोई वक्त है तो इशा के बाद का वक्त। नमाज के बाद, इशा के बाद हर घर का यह मामूल है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक या तो टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मोबाइल के अंदर रील्स देखते हैं, क्या कुछ नहीं करता इंसान। लंबी लंबी शादियों में, तकरीबों में, जहां औरत और मर्द का सेपरेशन में, ऐसी गैदरिंग, हर चीज, हर गुनाह रात में होता है। तो ये गुनाह का बोझ लेकर सोएगा तो उसको धोने के लिए कोई और नमाज नहीं है, उस दिन के बोझ लेकर सोएगा वो। दूसरे दिन में जो तहतरिकून है वो न फजर से शुरू होगा। मेरे भाइयों, इशा की नमाज के बाद इंसान को यह मामूल बनाना चाहिए कि फौरन सो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मर्तबा फरमाया कि एक आदमी, एक सहाबी एक औरत को बोसा दे देते हैं, यानी किस कर देते हैं, और फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भागे चले आते। कहते हैं कि मैंने एक औरत को बोसा दे दिया है, मेरा ये जुर्माना क्या होगा, क्या पनिशमेंट होगा इस गुनाह के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वक्त अल्लाह ताला ये आयत को नाजिल फरमाता है, अक़िमिस सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़न मिनल लैल, कि नमाज को कायम करो सुबह और मगरिब के दरमियान के वक्त में, और रात के वक्त में ईशा की नमाज को कायम करो। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, अच्छे काम बुरे कामों को मिटा देती है। सहाबा बैठे हुए पूछने लगे, ये जो हुक्म है या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ ये एक सहाबी के लिए है या किसके लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का हर गुनहगार के लिए ये हुक्म है। गुनाह हो जाए फौरन नमाज पढ़ ले, बंदा वजू कर ले, नमाज पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को साफ कर देगा।
اور یہ وہ गुनाह है, सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कल क़यामत के दिन सबसे पहले अगर कोई चीज का हिसाब लिया जाएगा तो वो नमाज का हिसाब होगा। आपने फरमाया इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा मिन अमलिही अस्सलात। सलात के बारे में, वो भी कोई सी फर्ज नमाज, अगर ये फर्ज नमाज मुकम्मल है, 100% है तो वो कामयाब, फक़द नजहा व अंजहा। आपने फरमाया ऐसा शख्स कामयाब होगा, सलूहत और अफलहा व अंजहा, ऐसा शख्स कामयाब हो जाएगा, उसको कोई चीज की परेशानी नहीं। और अगर किसी के फराइज के अंदर कोई कमियां रह गई तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा जाओ इसके नवाफिल के अंदर से कुछ है तो दोनों इसके नवाफिल में से उसमें से निकाल कर फर्ज को मुकम्मल करो। मेरे भाइयों, फर्ज नमाज के साथ नफिल की अगर पैडिंग मिल जाए इंसान को, कल क़यामत के दिन अगर फर्ज के अंदर कोई नक्स रहा, कोई कमी अगर रही, अल्लाह ताला ये नवाफिल से उसको डाल के मुकम्मल करेगा। मेरे भाइयों, फजर और ईशा के ताल्लुक से आपने फरमाया ये दो नमाजें मुनाफिकों पर बड़ी मुश्किल गुजरी। यानी जो शख्स पर फजर और ईशा नहीं पढ़ता तो समझ जाओ उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ निफाक है, सबसे ज्यादा मुश्किल उसके लिए। और आपने फरमाया अगर वो शख्स को ये दोनों नमाजों का फायदा अगर मालूम हो जाएगा तो वो मस्जिद को रेंगते हुए आएगा, वह इन वलो हब्वन, आपने फरमाया रेंगता हुआ आएगा मस्जिद। असर की नमाज के ताल्लुक से बहुत सारे लोग मुआशरे में ऐसे पाए जाते हैं जो मगरिब की पाबंदी करते, असर की पाबंदी नहीं करते। क्यों? काम के बीच में है, मीटिंग में था, गाड़ी चला रहा, कुछ ना कुछ बहाना इंसान के पास। आपने फरमाया वुतिरा अहलुहु व मालुहु, जो शख्स असर की नमाज की पाबंदी नहीं करता, अल्लाह ताला उसका माल और उसकी फैमिली दोनों बर्बाद कर देता। आज हर इंसान दुआ करता है कि बरकत नहीं, कमा रहा हूं बरकत नहीं, इसमें बरकत नहीं, पैसा बचता नहीं। असर की नमाज दुरुस्त करो, अल्लाह ताला तुम्हारे माल की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी फैमिली की भी हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों, जहन्नमी पूछेंगे दूसरे जहन्नमी से मा सलककुम फी सकर, कैसा तुम इधर आ गए, जहन्नम में कैसा तुम आ गए? तो वो जवाब देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। वकुन्ना नखूदु मअल ख़ाइज़ीन, गप्पे हाँकने वालों के साथ बैठकर बेकार की गुफ्तगू हम किया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मिस्कीन आता तो उसको खाना खिलाने पर उभारते नहीं थे, और हम दीन को झुठलाते थे। ये चार चीजें की वजह से जहन्नम में एंड अप। एक और सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुम देखना चाहते हो कि वो शख्स जो दीन को झुठलाता है? फिर अल्लाह ताला फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी हो नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये वो लोग हैं जो नमाज को पाबंदी से नहीं पढ़ा करते थे, नमाज को कभी पढ़े कभी छोड़ दिए, अगर पढ़े भी तो ख्याल किधर की है नमाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त जहन्नम की सैर कराई गई, बड़ा सख्त अजाब हो रहा था एक शख्स के साथ। और अजाब क्या कि एक इंसान को ऐसा लेटाया गया, पहाड़ के मानिंद एक पत्थर को लाया जा रहा है और उसके सर पर डाल के कुचला जा रहा है उसका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान उठे ऐसी सजा देखकर फरमाने लगे फरिश्ते से क्यों ऐसा खतरनाक अजाब दिया जा रहा है इस बंदे को? फरिश्ता जवाब देता है ये वो लोग हैं जो नमाज को अपने टाइम के बाद पढ़ा करते थे, यानी नमाज को छोड़ते नहीं थे, वक्त गुजर गया, वक्त के बाद नमाज पढ़ते थे।
इतना सख्त अजाब। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते हुए दो चीजों की नसीहत करके वो गए, दो चीजों की नसीहत। आखिरी वक्त है, आपने फरमाया अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों मेरे चले जाने के बाद दो चीजों की हिफाजत करना, दो चीजों के ताल्लुक से आप चौकन्ना रहना, एक नमाज और दूसरा वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करो। सिर्फ अपने गुलामों के साथ नहीं, गुलामों के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने काम वाले हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला तुम्हें एक कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया, टीम लीड बनाया, तो आपके अंदर मातहत, तुम्हारे अंदर जो काम करते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो। ये दो नसीहतें आपने की कि नमाज को कायम करो और लोग वमा मलकत ऐमानुकुम, मातहतों के साथ अच्छा सलूक। मेरे भाइयों, आज हमारे घरों के अंदर नमाज के ताल्लुक से इतनी गफलत कि जुमा की नमाज में मस्जिदें भरी मिलती हैं, रमजान मुबारक के पूरे महीने मस्जिदें भरी मिलती है, लेकिन जैसा रमजान चले गया, जैसा जुम्मा की नमाज खत्म हो गई, इंसान को नमाज की कोई परवाह नहीं। बच्चे सोते रहते हैं, बाप उठता है और चले जाता है, बच्चों घर में रोका जाता है, बच्चा अभी रात भर पढ़ के सोया है, फजर को उठाओ। मेरे भाइयों, अगर हम ऐसा बच्चों को छोड़कर नमाज पढ़ेंगे तो बच्चों को हम आग में ढकेल रहे हैं। अगर घर को आग लग जाए, इंसान ये सोचेगा कि वो रात भर पढ़ रहा था, वो काम से लेट आया, वो फुला चीज में फंसा हुआ था, क्या ऐसा सोचेगा? हरगिज नहीं। घर को आग लगी है, सबको लेकर बाहर जाएगा। ठीक इसी तरीके से बेनमाजी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, उसकी आखिरत बर्बाद होने वाली है। उसकी आखिरत को बचाने के लिए हम सबको, खुद को भी नमाजी बनना चाहिए और अपने घर वालों को भी। अल्लाह ताला फरमाता है कू अनफुसकुम, अपने आप को भी आग के अजाब से डराओ, वो अहलीकुम नारा, और अपनी फैमिली को भी आग के अजाब से डराओ। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मरते दम तक नमाज की पाबंदी करने की तौफीक हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारी नमाजों के अंदर खुशू खुजू लेकर आ। ऐ अल्लाह हमारी फैमिली में, हमारे बच्चों को, हमारी बीवी, हमारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, हर आदमी को नमाजी बना। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रख, दीन पर रख, और जब मौत आए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमें मौत आए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।